Hello guys, welcome to the third episode of 20ish podcast. So now I'm back from the vacation and it's time to talk about something which is very much in the news. cryptocurrencies and decentralizations. So I don't think we need to tell you the meaning of cryptos and all because it's so much in the news. It's just too much hyped and you might be knowing about it. Yeah, so let us just talk about why the hype is there. Yeah. So I think the hype is there because remember 2016 में जब demonetization हुआ था, just thinking why the government मतलब अचानक से आके उसने बोल दिया कि अब तो लीगल टेंडर नहीं है, 500,000 के नोट और नई करेंसी आएगी. सो वाई डू यू थिंक गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था? बिकॉज इट्स अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो जिसके पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकती है. वो एक पीस ऑफ नोट को मतलब करेंसी बोल सकती है और फिर उसे रिवर्स कर सकती है. इट हैज़ द पावर टू. सो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन एक तरह से. जैसे बैंक्स वगैरह भी आरबीआई के अंडर आती है तो वो भी एक तरह का सेंट्रलाइजेशन है. सो द एक्साइटिंग थिंग अबाउट बिटकॉइन और एनी काइंड ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो इज दैट कि वहाँ पे ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो अचानक से आके बोल देगी कि दिस इज नो मोर वैलिड. इट इज हाईली बेस्ड ऑन वट एवर द प्रिंसिपल्स ऑफ द मार्केट आर. Yeah. So you see billionaires लोग जो होते हैं they don't want to be controlled. Of course no one wants to be controlled. I mean normal people like us कभी हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठा सकते बट दे आर रिच इनफ कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट की स्कीम से. सो दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड and yeah, so they are trying to bring this decentralized version of currency जिससे वो लोग ट्रांजैक्शंस कर सके और उनके ऊपर कोई अथॉरिटी भी ना हो. इट इज़ फुली based on the principles of the market. We call libertarian views. So I think this is why there is so much hype around it. और देख क्या होता है कि जब बिल गेट्स का न्यूज़ आता है आया था कि वो he is the richest person in the world. Everyone wanted to be Bill Gates. Similarly, Steve Jobs का जब आया था कि Steve Jobs is a kind of revolutionary person. Everyone wanted to be Steve Jobs. Similarly, Elon Musk. Everyone wants to be Elon Musk. Suddenly, Whitehead Jr. के ads देख लो. I know this is off the topic, but still, suddenly everyone wants to be like that. So since they are investing so much into it, they are promoting it. तो कहीं ना कहीं नॉर्मल पब्लिक इज ऑल्सो लाइक ओ वी ऑल्सो वॉन्ट टू बाय इट. फिर ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए CoinDesk. तो इंडिया में तो बैन हो गया है. CoinSwitch इज वेरी फेमस इन इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो. तो इंडिया में तो बैन हो गया बट बाहर के देश में नहीं है बैन. सो दे काइंड ऑफ बाय एंड सेल इट. Yeah, and also the new policy by RBI which says that it would bring a digital currency. It is very much different than cryptocurrency, but not very different. It would still be, inflatable currency. Yeah. कहीं ना कहीं it will be centralized. Yeah. The only similarities, it will be centralized. Other than that, everything will be quite similar. So I think we should also talk about why India planning to buy Bitcoin is. One more thing that is very much in news is the new kind of currency that would be rolled out by the RBI. It is said to be a digital currency, but it is not very much like cryptocurrency. It will just be like an digital currency. जैसे मार्केट में हमारे होते हैं पैसे सर्कुलेट होते हैं, वैसे a part of it would be digitalized. आप बैंक से जाके उसको निकाल नहीं सकते. The only difference would be कि that would be not like crypto, but it would be kind of digital currency जहाँ पे आप उसको निकाल नहीं सकते but you can still use it. The biggest disadvantage is कि ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत ज़्यादा एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे बेस्ड है बट हमारा गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू सेंट्रलाइज इट वाया चैनलिंग इट वाया RBI. So I don't think. Yeah, of course, because blockchain technology is very much secure. उसमें we don't need the guidance of RBI. It is very much खुद में sufficient. But people like Bill Gates and Warren Buffett don't approve of it. And I'm very
आई थिंक यू ऑल माइट नो द रीज़न, बिकॉज यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज, टेरर फंडिंग इन सब में यूज़ होता है. So I think now you are clear why there is so much hype around crypto, private crypto, basically Dogecoin, वही बोलते हैं ना, Bitcoin. So I think now it brings us to the second part of the podcast, which talks about decentralization. not decentralization, मतलब ये रहेगा या नहीं रहेगा, Okay. whether crypto is here to stay or not. So what do you think? I तो think it will stay. Me too. I think that इन कमिंग टाइम्स इसका जो क्रेज़ है वो और बढ़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करे, बिकॉज विथ कंट्रोल कम्स सम काइंड ऑफ यू नो आई मीन, मतलब कहीं ना कहीं बहुत रेगुलेशंस आ जाती है. Yeah. यू कांट बी वटेवर, यू कांट डू वटेवर यू वांट टू डू. एंड एट द सेम टाइम देयर आर मेनी पीपल जो बोलते हैं कि गोल्ड विल रिड्यूस इन वैल्यू. इट वोंट. इट विल नेवर. एंड विद द मतलब जिस तरह से कम हो रहा है गोल्ड के रिजर्व्स, उस अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल. हो सकता है कि आने वाले टाइम में इट वुड बिकम वेरी मच रेयर. गोल्ड ना. या एंड ऑल्सो बिकॉज गवर्नमेंट की सारी बैकिंग जो है इट इज बेस्ड ऑन नंबर 1 US डॉलर, नंबर 2 गोल्ड. या जैसे बैंक्स वगैरह भी अगर उनको गोल्ड रखना पड़ता है ना तो करेंसी छापने के लिए. हाँ, तो फिर या गोल्ड विल नेवर डिमिनिश, और एकदम सही बात है, इट माइट इंक्रीज इन वैल्यू. एंड नंबर 3 also I think gold will not go away so easily is because governments, the system of governance here to stay. Yeah, The system and of also, countries is yeah. here to stay. Of course, and also कि अगर गोल्ड की वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी तो वील जो होगी नहीं, बट मान लेते हैं फॉर लाइक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हो जाती है, तब भी वी विल नीड समथिंग एल्स जिसके अगेंस्ट हम करेंसी अपनी यू नो प्रिंट करेंगे. कर सके. एंड सिक्योरिटी will never approve of private cryptos. Yeah. At least private. एटलीस्ट. सो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मतलब गवर्नमेंट कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, बट आज के टाइम पे इतने ज़्यादा यू नो प्राइवेट ओनर्स हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम हो. जैसे यूएस में क्या है, दे वांट मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो अगर वैसी सोसाइटीज़ में देखा जाए तो आई थिंक क्रिप्टो इज़ गोना स्टे. और फिर वट एवर हैपन्स इन द वेस्ट दैट विल ऑफ कोर्स Affect India. and Especially all Asia. all the third world countries. But Asia बोल सकते हैं. Yeah. Will certainly affect Asia. So I think the government of India is wrong in banning private cryptos. I even wrote a blog on it. देख, सबसे पहली बात तो why are you denying the benefits of decentralization? Yeah. सबसे पहली बात तो ये. We'll definitely talk about decentralization and why it is beneficial in the later part of this podcast. It might be the conclusion. So I think this is one main reason why I think that government should not be banning Bitcoin, not just Bitcoin but any private crypto. And also अभी तो Elon Musk अगर Dogecoin को सपोर्ट कर रहा है, so who knows, कल दिन Dogecoin जाके मार्स का करेंसी बन जाए. Yeah, so I think gold will stay. Definitely. Of course it has to. खरीदो भाई, सोना खरीदो. हाँ. डोंट वरी, आराम से खरीदो. गवर्नमेंट रहेगी, सरकारें रहेंगी, देश हाँ. रहेंगे, तो सोना भी रहेगा और तेल भी रहेगा. जैसे ईवी के आने से क्या डीजल कार, पेट्रोल कार चला गया नहीं ना, बल्कि देखो बढ़ रहा है. वही तो सिमिलर, बिकॉज जो भी अनरिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि नॉट रिन्यूएबल. हाँ, क्योंकि वो एक दिन यू नो दे विल जस्ट गो एक्सटेंट वन डे. जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, सही. तो यू नो जैसे जैसे एक्सटेंट होने के कगार पे आएंगे वैसे वैसे वैल्यू तो बढ़ेगी. ये सब देखता भी तो ओपेक कंट्रीज है. या ओपेक जब से ओपेक आया है तब से कहीं ना कहीं स्टेबलाइज भी हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी हुआ है. अगर देखा जाए ओपेक कंट्रीज है तो फिर तेल नहीं जाएंगे, सोना नहीं जाएगा. ये तो सुन लो. तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं आप सोने में, ऐसा कुछ ये नहीं है. इवन दो वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बट आई थिंक इट दैट्स वेरी मच लाइक कॉमन सेंस की एक रूमर की हाँ गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड की वैल्यू सच में कम हो जाएगी. इट इज हियर टू स्टे. हाँ, और इंडिया में तो और स्टे करेगा, क्योंकि भाई शादियों में क्या चढ़ते हैं सोने भाई, वो तो देखो.
इंडिया में से नहीं जाएगा। सोने की पूजा होती है इंडिया में, सो इंडिया में तो सोने की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। अगर मैं कल आज जाके अपने पापा को बोलूँ कि पापा मुझे बिटकॉइन लेना है, नहीं ही विल नॉट, मैं बोलूँगी मुझे सोना लेना है, हाँ, वो मुझे पैसे निकाल के देंगे। वही तो दैट्स द डिफरेंस इन आवर मेंटालिटी कि हम भी, क्योंकि बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो इज वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर अस। धीरे धीरे टाइम लगेगा, विल अंडरस्टैंड द प्रोस एंड कॉन्स। विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, but our parents will never understand. They will invest in gold. So there are a lot of reasons why gold will stay. So just because some billionaires are like, oh, gold is gonna diminish, this, that. It's simply because they want gold to be diminished, because they want the currency to be decentralized. Yeah, because they want कि जो हमारा attention है वो कहीं और शिफ्ट हो। अगर हम सोचेंगे सोने की वैल्यू कम हो रही है तभी तो हम सोना कम खरीदेंगे और बिटकॉइन या डोजी कॉइन कुछ भी ज्यादा खरीदेंगे। एथेरियम, रिपल, या ओके, सो जस्ट वांट अस टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो ताकि उसकी वैल्यू बढ़े और मार्केट में फिर इट बिकम्स मोर बेनिफिशियल। और अगर a larger number of public is using crypto, तो उनके पास भी रहेगा कि हाँ भाई, we are not the only ones who are supporting this type of system, a decentralized system. So yeah. So 2 questions we have answered. Number 1, why the hype? Number 2, will Bitcoin and gold stay? And then we come to the kind of last topic. The middle topic, which is Telegram Open Network. Yeah. इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट जस्ट नो दैट इट अगर ये रिलीज हो जाता ना तो मतलब वो सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती आज के दिन में। बिकॉज ओके, आई विल गिव यू अ ओवरव्यू, बिकॉज आई नो बहुत लोग नहीं जानते, बिकॉज टेलीग्राम फाउंडर एंड सीईओ इज नॉट एज फेमस एज एलॉन मस्क, बट आई डोंट थिंक ही इज एनी लेसर देन हिम। ओके, सो उसका कंसेप्ट ये था कि टेलीग्राम तो एक मैसेजिंग ऐप है, सो वो लोग एक ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाते जिसके तहत वो लोग एक ग्राम्स इशू करते, विच वाज टेलीग्राम का क्रिप्टो ग्राम्स। ठीक है, एक होता है कुछ SAFT, स्पेशल अग्रीमेंट ऑन फ्यूचर टोकन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल गो एंड सर्च। SAFT बोल के एक होता है, तो उसके वो एक US का ही होता है। इट्स अ काइंड ऑफ सिस्टम कि मान ले कल मेरी क्रिप्टो आ रही है मार्केट में, ठीक है, बट मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे पैसा दिया आज और उन्होंने बोला कि मुझे ये खरीदना है तो मेरी जगह आप सिक्योर कर लो। मतलब जैसे शेयर्स में क्या होता है, पहले अलोकेशन बाद में होता है, पहले शेयर अपॉइंटमेंट का पैसे ले लिए जाते हैं, अलोकेशन बाद में होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लास्ट बाद में होता है। तो सिमिलरली SAFT कर लिया था टेलीग्राम वालों ने, उन्होंने $1.7 बिलियन इकट्ठा किए थे और उन लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया था कि ठीक है लेटर हाफ ऑफ 2020 में हम लोग लॉन्च करेंगे, 2020 या 21 में व्हाटएवर वो लोग लॉन्च करने वाले थे। एंड दे वर लाइक कि हम ये दे रहे हैं आपको, आपकी जगह सिक्योर है, आपको ग्राम्स मिल जाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट टेलीग्राम ओपन नेटवर्क का ग्राम्स was कि देखो, टेलीग्राम ओपन नेटवर्क was a blockchain technology and grams was its crypto. मैंने ऐसा सुना था, I'm not sure about it, मैंने इसमें I'm sorry मैंने रिसर्च नहीं किया ज़्यादा कि आप खुद का क्रिप्टो बना सकते थे टेलीग्राम ओपन नेटवर्क में, खुद का very new concept, a very new concept and very decentralized and very very radical. So you could have made your own crypto. आपके अपने क्रिप्टो का एक चैनल होता टेलीग्राम पे। Now those of you who use Telegram will know the concept of channel in Telegram. हाँ, so वो वो एक kind of bot होता वो चैनल, मतलब bots उसे चलाते, even though एकदम नॉर्मल सा ग्रुप भी आज के दिन में बॉट ही चला रहा है टेलीग्राम पे, ग्रुप बोलो या चैनल बोलो, थोड़ा बड़ा हो जाता है बस बॉट्स आ जाते हैं उसमें। सो आप अपना क्रिप्टो बना सकते थे एंड क्या होता कि आपका खुद का चैनल बन जाता, दो टेलीग्राम का क्रिप्टो ग्राम रहता, बट आप भी उस नेटवर्क के तहत अपना बना सकते थे। सो मतलब कॉन्सेप्ट था कि एक टेलीग्राम ओपन नेटवर्क के थ्रू उनका खुद का एक होगा क्रिप्टो, खुद का होगा, उसके अंडर आप अपनी भी प्राइवेट क्रिप्टो मतलब बना सकते हो और फिर आप उसको जैसे भी यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो, which is very radical concept. So उसका सबसे अच्छा बात पता है क्या था कि आप इसको स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस में यूज नहीं कर सकते, जो आज के दिन में बिटकॉइन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। Used in speculation, don't know those of you who don't know about speculation, it's कि जैसे मैंने
अच्छा कशिश एक्सप्लेन करेगी, बताओ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेकुलेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम देखें तो हर एरिना में होता है कि मान लो कि कहीं से ऐसा रूमर आ गया कि कल रिलायंस के शेयर का दाम बहुत बढ़ जाएगा, तो मैंने आज बहुत सारा शेयर एक्यूमुलेट कर लिया। अरे तुझे पता है क्या हुआ था एक बार, जब टेस्ला इंडिया आने वाली थी ना, तो ट्विटर पे किसी फेक टाटा के अकाउंट ने, टाटा मोटर्स के अकाउंट ने ऐसा कर दिया था, वेलकम टू इंडिया। ऐसा था कि मतलब टेस्ला की जो चार्जिंग पॉइंट है वो टाटा मोटर्स प्रोवाइड करेगी, टाटा की भी, और टाटा का शेयर अचानक से बढ़ गया। यस, अभी भी बढ़ रहा है, कॉल्ड स्पेकुलेशन। अभी भी बढ़ रहा है, बट आई डोंट नो अभी क्यों बढ़ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ आईपीएस आने वाला है इसलिए मार्च में, विच इज अ वेरी गुड कार, बट लेट्स नॉट गो देयर। सो दिस इज स्पेकुलेशन and Bitcoin is being used in speculation now. But Telegram open network, जिस तरह से लास्ट दिसंबर टू दिस फरवरी बिटकॉइंस के दाम बढ़े हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन। मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई हाँ बिटकॉइन इज द फ्यूचर, सो दे आर बाइंग इट, और जो बेचने वाला ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट है भाई। ऑल्दो ये बैकफायर भी कर सकता है। देख मैं देखो बता दूं, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स कि हर चीज का जवाब रिलीजियस बुक्स में है। आई एम नॉट दैट पर्सन, बट गीता में एक श्लोक है, हर अंत का अंत होता है। एवरीथिंग व्हिच इज बूमिंग विल बर्स्ट ऑफ कोर्स। तो वी आर नॉट सेइंग कि क्रिप्टो करेंसी विल नॉट स्टे, बट वी आर जस्ट सेइंग कि हो सकता है कि बिटकॉइन बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएगा। बट नहीं भी हो सकता है। हाँ, नहीं भी हो सकता है। We are also speculating, और हो सकता है कल दिन वो जीरो चल जाए, उसके बाद हाँ, और अगर एक बार जीरो चला गया तो उसकी मार्केट जो कैप्चरिंग पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। और एक बार अगर किसी चीज़ की वैल्यू बहुत कम हो जाए, फिर वो जितना भी उठे, लोगों के मन में एक आता है कि यार अगर वापस हम करेंगे, फिर वापस हुआ तो सेम इज हैपनिंग विद अस ना, कि हम लोग कैश नहीं रख रहे ज्यादा। यस, वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन पेटीएम एंड यूपीआई वगैरह। ओके, सो ये था टेलीग्राम ओपन नेटवर्क का कंसेप्ट। आप अपना खुद का बना सकते थे, आप उसको स्पेकुलेशन में नहीं यूज कर सकते थे, आप उसको TON में ही काइंड ऑफ यूज कर सकते थे उस नेटवर्क के तहत। अब एक यूएस के कोर्ट, एक न्यूयॉर्क के किसी कोर्ट ने बोला कि टेलीग्राम जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है। नहीं, मतलब सिक्योरिटीज दे रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी, मतलब शेयर्स दे रहा है किसी को विदाउट एनी हैविंग द प्रॉपर अथॉरिटी। ओके, सो हियर कम्स द कांसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आप कैसे किसी को ये पावर दे सकते हो कि वो इशू करे क्रिप्टो। हाँ, तो आप सबसे पहले बात तो आपको किसने ये पावर दिया कि आप उनको क्रिप्टो इशू कर रहे हो, और अगर आप कर भी रहे हो तो यू डोंट हैव द अथॉरिटी। ठीक है, तो पावेल ड्यूरोव जो है उसका फाउंडर, दे काइंड ऑफ हैड अ 6 month लॉन्ग कोर्ट में हुआ, एंड फाइनली उन लोगों ने जुलाई में या जून में ड्रॉप कर दिया ये प्रोजेक्ट, एंड दे वर लाइक वी आर अबैंडनिंग इट बिकॉज यूएस ने फालतू जस्टिफिकेशन दिया। कोर्ट ने बोला कि भाई सिर्फ यूएस में बैन नहीं होगा, पूरी दुनिया में बैन हो जाएगा। हाउ कैन अ जज सिटिंग इन अ कोर्ट इन यूएस डिसाइड फॉर द होल वर्ल्ड? दैट्स द रीजन ना, कि उन्होंने बोला कि क्योंकि यूएस के सिटीजन तो कहीं और से भी जाके खरीद सकते हैं, मतलब दे विल फाइंड चैनल्स वाया विच दे कैन सब्सक्राइब टू TON and take grams or whatever kind of crypto which is being formed there. So वही बात है ना कि कल दिन क्या पता यूएस के वो जज हमें आके बोले कि सिंस यू आर यूजिंग यूएस का प्रोडक्ट तो हमें 30% टैक्स दो, अपने इनकम टैक्स। सो इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड कि कोर्ट आके डिसाइड करे कि पूरा दुनिया में क्या होना चाहिए। टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, और एक कंसेप्ट सेंट्रलाइजेशन का, तू सोच रहा दुनिया की 4% पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कि बाकी 96% के साथ क्या होगा, क्योंकि देख यूएस की तो पॉपुलेशन 4% है ना, 4% है ना दुनिया की, और नहीं तो क्या। और वो डिसाइड कर रहे हैं एक जगह बैठ के कि पूरी दुनिया में क्या होगा, which is ridiculous. This is ridiculous. Even though if you know about crypto mom Hester Pierce, so she was like कि मैं तो भाई बिल्कुल सेक का अपोज करती हूँ, मतलब सेक होता है वहाँ का सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, यूएस का सेबी है वो। उन्होंने बोला कि वो भी सेक की कुछ है, एंड शी वाज लाइक कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल अपोज करती हूँ, इन माई प्राइवेट पावर आई अपोज दिस पॉलिसी, क्योंकि वो बहुत रेडिकल कंसेप्ट होता, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तरह फैलता। नहीं, कोरोना वायरस की तरह नहीं फैलता, बट
वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज आज के टाइम पे। हाँ, इंडिया में ही देख लो, स्टेम में पता है कितनी औरतें, 43% वुमेन इन इंडिया आर इन स्टेम। वो लोग अपना क्रिप्टो नहीं बना सकती थी। मान लो उसका आधा का आधा भी अगर बना रही है, 10%, हाँ, अराउंड 10%, which is a big number. Yeah, 10% Of इंडिया Indian के female. वही तो Indian female. Forget about males. इंडियन व्हाट वी कैन से। So ये बहुत ही बेकार, बहुत ही फालतू काम किया इन लोगों ने, बट what can we do? यूएस हैज दिस कि उनको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। उनके अंदर ये पता नहीं कौन सी दिक्कत है भाई, अपना देश संभाल नहीं रहा है पर पूरा दुनिया संभालना है इन्हें। सीरियसली इसीलिए देखना, हम ये बात मैं या कशिश या कोई भी, इवन पैवल ड्यूरोफ, इसलिए नहीं बोल रहे कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, रशिया इज नॉट ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट वी आर नॉट सेइंग दिस बिकॉज वी आर आउटसाइड द यूएस, वी आर सेइंग इट बिकॉज सी इवन द अमेरिकन बिलियनियर्स दे वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम फेड वहाँ का आरबीआई, ठीक है, इवन दे वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम फेड, इवन जैक डोर्सी ऑफ ट्विटर, एलॉन मस्क, फिर जाके whoever the Bitcoin billionaires in America are, whoever believes in crypto and is a billionaire doesn't want कि गवर्नमेंट उन्हें रेस्ट्रिक्ट करे, क्योंकि उनका उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। सिक्योरिटी का 30% टैक्स, वही तो सिक्योरिटी तक नहीं दे पाता है गवर्नमेंट आज के टाइम पे अगर देखो। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो साल के 120 दिन वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनका 120 दिन का कमाई बहुत होता है भाई, ये मेरा और तुम्हारे कमाई से बहुत अलग है। सो they certainly don't want to be governed. मतलब the give and take relationship is not very feasible for them. उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, वो बस दे रहे हैं, तो क्यों ही चाहेगा कोई? इससे अच्छा तो वो चैरिटी करे। उन्हें कम से कम पता तो रहेगा ना उनका पैसा कहाँ जा रहा है, और नहीं तो क्या, और उन्हें टैक्स इवेजन भी मिलेगा अगर देखा जाए तो। हाँ, so anyway, coming back to Telegram Open Network, do tell us in the comments what do you think of it, and जाके थोड़ा पढ़ो टेलीग्राम ओपन नेटवर्क के बारे में। इट वाज अ वेरी गुड कंसेप्ट एंड आई एम सो सॉरी इट वाज अबैंडन्ड। या मे बी इन फ्यूचर अगर इसका कुछ होगा तो विल कीप यू अपडेटेड फॉर श्योर। नाउ कमिंग बैक टू आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग वी हैव रिकॉर्डेड। Okay, so before we talk about decentralization, let us talk about open source network, that is internet, कि और कैसे इंटरनेट ने काफ़ी अच्छी रोल प्ले की है towards making our minds decentralized। कि हम जैसे लोग अब आके बोल रहे हैं कि no, we want to break free, we want to be decentralized, मतलब we certainly are not talking about कि नहीं गवर्नमेंट को चल जाना चाहिए and all, but power should be in the hands of people and the ones who are representing the people, मतलब इन द सेंस जो फील्ड में है उनके पास होनी चाहिए ज़्यादा पावर। इवन मैं स्टार्टअप नेशन पढ़ रही थी, वो इजराइल वाला बुक, सो मैंने पढ़ा था उसमें कि इजराइल की ज़्यादा आर्मी में क्या होता है कि मतलब सर्जेंट एक होता है ना जो इट्स अ रैंक, उनको भी मतलब उनको क्रिटिकल से क्रिटिकल बातें पता होती है। क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने मतलब जो लोग फील्ड में जाके लड़ते हैं उन्हें इतना ज़्यादा पावर दे रखा है कि वो लोग आके अपने सीनियर्स को बोल सकते हैं कि सो आई थिंक वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट। वो हमारी आर्मी में नहीं है। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द 1962 वॉर विद चाइना, उसमें मतलब जिन लोगों ने उस वक्त वॉर में मतलब पार्टिसिपेट किया था आर्मी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो लूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न था दैट वाज सेंट्रलाइजेशन। हमें ऑर्डर्स दिए जा रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते और आप ये कर सकते हैं। सो यू सी हमने इतना ह्यूमिलिएशन फेस किया है उसकी वजह से इन द वर्ल्ड, बस क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज नहीं थे। अगर वहाँ पे उनके हाथ में पावर्स होती कि वो एयरफोर्स भी यूज़ कर सकते, नेवी भी यूज़ कर सकते। मैंने पढ़ा था कि उन लोगों ने एयरफोर्स और नेवी इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि उन्हें डर था कि चाइना भी ना करने लगे। वही क्यों भाई, मतलब है कि और उसके बाद अगर वहीं देखे वापस जो हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई है, जितनी भी वॉर्स उसके बाद हुई हैं, उसमें पहले आर्मी ने कह दिया था कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड पावर चाहिए, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने कहा आपको जो करना है करो। तो यू सी रिजल्ट्स। वो वाला एक हुआ था ना जिसपे बॉर्डर मूवी बेस्ड थी, याद है? वो 120 सोल्जर्स थे और पाकिस्तान के 1000 सोल्जर्स आ रहे थे, और लोगों ने अपनी
अपने बुद्धि से इन्होंने किया। अगर वो गवर्नमेंट के पीछे पड़ी रहती कि वो बोलेगी तो जो उस टाइम पे पूरा उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम किस वक्त जाके अटैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, पहले ही उन्होंने कह दिया था गवर्नमेंट को कि हमें जैसा फीजिबल लगेगा हम वैसा करेंगे, आप हमें नहीं बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वी सी द रिजल्ट्स। So decentralization हर जगह needed है. You see, I'm not just talking about financial transaction. Even in the army, even in a company, even in your life. In everyone's life. Yeah. चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा आदमी हो या कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन. गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. जैसे आजकल इफ वी डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिकली, दे कैन कंट्रोल, बट अब फील्ड में जो है उसको पता है कौन कैसा होता है. वही तो. और आजकल वैसे भी गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे अननेसेसरी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रही है जिनसे उनका कोई वास्ता ही नहीं है. हाँ, सो उसके पहले क्या बोल रही थी? इफ आई डोंट टॉक पॉलिटिकली. हाँ, इफ़ यू डोंट, आई वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि अगर पॉलिटिकली बात ना करें तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट के पास एक कंट्रोल है कि हाँ जहाँ पे गलत है वहाँ पे आप करो, पर अननेसेसरी इतना ज़्यादा वी डोंट नीड दैट. आजकल लोग बहुत सेंसिबल हो गए हैं. जहाँ पे गलत है वहाँ वी विल गिव यू द पावर. हम इलेक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट तो इसी के ऊपर बेस्ड है ना कि यू गवर्नेंस एंड मतलब विल बी अंडर योर गवर्नेंस. इट्स जस्ट अ ट्रीटी कि हमें पीस चाहिए. अब वो पीस मेंटेन करने के लिए पीस और सिक्योरिटी चाहिए. उसके लिए आपका जो बिट है आप वो करो, मेरा जो बिट है मैं वो करूंगा. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्टेट. किसने दिया था ये? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट राइट नाउ. रामजी? Not Gramsci, but उसके पहले भी there were people who talked about it. John Locke was the first who, अगर we talk about John Locke, तो he was the first जिसने ये recognize किया था कि right to privacy is very important और state को restrict नहीं करना चाहिए ज़्यादा. We need decentralization. तो थॉमस हॉब्स was the one who said कि गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसने कहा गवर्नमेंट सब रेस्ट्रिक्ट कर सकती है. फिर जॉन लॉक आया, उसने कहा गवर्नमेंट सब नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकती, जिसमें हमारा भला है सिर्फ वही रेस्ट्रिक्ट कर सकती है. तो दिस वाज द कंसेप्ट एंड वी शुड नॉट टॉक मोर अबाउट इट. हाँ, मतलब ये अलग बना सकते हैं इसके ऊपर एक. यस, we'll of course make one on this. If you guys are interested, please let us know. So now coming back to decentralization. Okay, so I think now you have a clear idea why decentralization is important. Yeah, I think the war वाला idea was pretty good. हाँ. वैसे ही कंपनीज में भी होता है. वी सी कि अगर कंपनीज में भी हम पावर दें हमारे एम्प्लॉयज़ को तो वी नीड, तो हम देखते हैं रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, है ना? हाँ, होते हैं. Okay, so one more case I can tell you is कि centralized database अगर हो, I mean just think कि एक database बना है. I won't take names, तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा नाम आ रहा है. It's आधार. आधार एक तरह का बहुत ही centralized database है. There were many who did not want to make an Aadhaar card back in 2012, but अब उन्हें बनाना पड़ा बिकॉज एक नॉर्मल सा बैंक अकाउंट के लिए आपको आधार चाहिए. यस. सो आई एम नॉट टेलिंग कि इट्स बैड. अच्छा ठीक है, चलो एक लेकिन इट इज सेंट्रलाइज्ड. आई एम जस्ट थिंक अबाउट कि सेंट्रलाइज अगर किसी ने हैक कर लिया इनटू द सिस्टम ऑफ आधार तो इतनी ज़्यादा डेटा लीक होगी. Had that been into a kind of system which is very decentralized and is changing every minute just like blockchain is, तो ये हैक करना बहुत मुश्किल है. यू कैन नॉट हैक अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि उस पर खुद चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग है कि आप अगर हैक कर भी लेते हो तो यू कैन नॉट परसिस्ट. आप एक ही चीज़ तो है नहीं कि आपने हैक कर लिया. जस्ट इट्स लाइक फेसबुक, एक बार हैक हो गया तो हैक हो गया, पर ब्लॉकचेन इज नॉट लाइक दैट. सो वी जस्ट वांट टू से कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द नॉर्म ऑफ टुडे. अच्छा, सो दिस वॉज अबाउट कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है वो कितने इजीली हैक हो सकता है. सो यू सी इवन हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कम्स. दिस वॉज नंबर 1. एक और पॉइंट था मेरे दिमाग में एंड इट वॉज कि जस्ट थिंक अबाउट आवर फर्स्ट पॉडकास्ट व्हेन वी टॉक्ड कि पावर एंड वर्च्यू कांट कोएग्जिस्ट. What if the agent which is looking after centralization is a tyrant? Yes. मतलब उसके बाद just history has seen such people. Yeah. I mean just think क्या होगा. We might even go next World War. Yes. If I'm not hyping it. Of course. I mean, whatever we say on the basis of speculation
it's It's just based on history Yeah. only. So what if the centralization का agent is very much tyrant? Just thinking तब क्या होगा? Of course. So this is, I mean, we have n number of reasons कि क्यों centralization से हमें एक step आगे लेके जाना चाहिए, and why we need decentralization. I mean back जब मैं क्लास 12 में थी, मुझे याद है मैंने centralization reason तूने भी पढ़ा था. हाँ, इसका commerce में concept पढ़ा पढ़ा था. था हम लोगों ने. तब हमें रियलाइज ही नहीं हुआ था कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या To be है. honest. इतनी थियोरेटिकल है ना हमारी एजुकेशन की. उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि क्या है भाई. बस मुझे पता था सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही इंसान सब रूल करेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब चेंज होंगे, वी कैन टेक आवर डिसीजंस. मतलब इतनी ज़्यादा रैडिकल है ये कंसेप्ट. ये तो मुझे to be honest 2020 में पता चला. हाँ, मुझे भी. Okay, so we have recorded a lot today. I mean, more than what we used to record. Yeah. But it's a good sign. We are trying to hold on to the Conversations. Now, so you now know that why we don't need these centralization. There are a number of reasons. And just think blockchain technology अपने आप में काफ़ी ज़्यादा decentralized है, और And टॉन it की might- टेक्नोलॉजी तो और ज़्यादा थी, क्योंकि Yeah. मैं जाके अगर क्रिप्टो बन, तो मैं समझ रही है ना, Yes. मैं भी जाके क्रिप्टो बना सकती थी. And I mean just go and research more about it, though I'm not sure. But अगर if this is feasible in any kind of network, just think how radical that will be. Yeah, और of course the world will change in a minute. जहाँ एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएंगी एक तरह से देखा जाए तो. अभी हमें बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बस नाम पता है, कैसे फंक्शन करती है. आधे को नाम भी नहीं पता है. वही तो, कैसे फंक्शन करती है क्या है वो भी नहीं पता होगा. अच्छा, should we make a podcast on it? या प्लीज लेट अस नो इफ यू वांट टू. वैसे I think there are resources on YouTube itself. Yeah. जहाँ से आपको पता चल जाएगा. So you don't need a separate podcast. पॉडकास्ट फॉर नोइंग व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. And it's completely okay if you don't know. Yeah. Because ये हमें सब नहीं पता हो सकता. because this is the new normal. Decentralization is the new normal, and let's It's just still face it. not normal in country like India. We don't Country. improve it. And Russia Yeah. and Pak, China. No, we cannot talk about China at all. When we talk about decentralization in China, they are poles apart. No. Yeah, right. Hell and heaven. Yeah. The difference. So anyway, So I think we should stop here. Yeah. yeah, we should stop here. अभी के लिए क्या बोलूँ मैं conclusion में कि Bitcoin खरीदो, Dogecoin खरीदो. We do not support अच्छा. any of the cryptocurrency. मतलब I do not promote. Endorse, yeah. Yeah. Support. We do support. We do support, of course. I do. But I we mean, don't we do not endorse. And you know, we are making this podcast sitting face to face. और मुझे लग रहा है face to face conversation ज़्यादा अच्छी होगी. Yeah. Yeah. So let's see. Like- Future में I was thinking, let's go live on YouTube and Yeah. Zoom call करके. So Of course. We'll think about it. And if you want, you can tell us what you want to hear next. anyway, let's just End close this here? End this here. And we'll see you in the next one. Yeah. Bye. Bye.